not lying on the curve. And with a very simple example, we'll start and finish with a good example. We'll start with a simple example. Everything is coordinate affiliated over here. So type 2. Like this. Guys, the question is इक्वेशन. ये क्वेश्चन तुम लोग 10 सेकंड में कर दोगे, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से क्या मतलब है. टेंजेंट नॉवल जो चैप्टर कर रहे हैं वो सिखाने के लिए इजी एग्जांपल की जरूरत हम लोग को होती है, राइट. वो इजी एग्जांपल में ले रहा हूँ. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to y square is equal to 4x through the point 2, 1. Guys, 2, 1 is not lying on the curve. You can see easily. This is your curve. I'm not talking about parabola, this and that. I'm talking about a general curve. This is not parabola. This is general curve. Whenever a curve given and the point is not lying on the curve, what we have to do in every question? Just see. This is your point. 2, 1. In every question, assume it like this. And let 2, 1 point say to tangent draw kiya hai. It's meeting the curve at x1, y1 point. Right? The tangents drawn from 2, 1 to the parabola, meeting the parabola at x1, y1. Always assume a point. When the point is not on the curve, then let x1, y1 be the point where the tangent is through this. Curve kuch bhi ho usse koi matlab. You'll always get two equations. First equation you will get, equation 1 you will get. First equation you will get x1, y1 lies on the curve. So y1 square is equal to 4x1. x1, y1 is on the curve. Okay. And second equation you will get equation of tangent, or you can say slope of tangent at x1, y1 is equal to slope of the line joining x1, y1 and 2, 1. That means the first equation I have got here. Second equation I will write slope of the tangent, that is dy by dx. Dy by dx is nothing but it's 2 by x, no, 2 by y. At x1, y1 it will be y1, 2 by y1. So second equation I'll get 2 by y1 is equal to slope of the tangent at x1, y1 is equal to slope of the line joining these 2 points, means y1 minus 1 upon x1 minus 2. y1 minus 1 upon x1 minus 2. Let's take a cross multiplication. You have two equations here and you have to find the values of x1 and y1. Guys, it will happen in every question. Whenever tangents are drawn from a point which is not on the curve, right, you will always assume a point. So you will get first equation. Assuming this point, we will put it in the equation of the curve. You will get the first equation. Second equation you will get from this. Line joining these 2 points is equal to dy by dx. Curve change होगा तो dy by dx change होता चला जाएगा. बराबर है. dy by dx ये निकलेगा and ये slope equal. Now guys, two equations, two variable doesn't imply two solutions. Two equations, two variable means infinite solution भी हो सकते हैं. If you take sin x and cos x, two curves, they are intersecting at infinite points, right? So number of points x1, y1 I'm getting, number of points x1, y1 I'm getting is equal to number of tangents. Do you understand this or not? Yes. Yes, sir. I repeat my statement once again. Number of x1, y1 from these two equations is equal to number of tangents. This is in general you have to solve the question. For all the question you have to utilize the same pattern. Yes, sir. Right.
So let us solve this question. We know, like, how to solve this question without this what we have done, right? But still, I'm taking you must be knowing y equal to mx plus a by m. You will take the tangent and it will be through 2, 1. So you'll get the values of m and you can find the equation, right? But we are not applying this because we are not doing parabola here. In general, we are talking. Okay. So guys, take a cross multiplication. Y1 square minus y1 equal to 2x1 minus 4. Now value of x1 is equal to y1 square by 4. I'll be putting here. So what do I get? Y1 square minus y1 equal to 2 times x1 means y1 square by 4, right? Minus 4. Guys, now do one thing. This 2 left, I'll take LCM. I'll get 2y1 square at this place minus 2y1 equal to y1 square minus 8. That will give me y1 square minus 2y1 plus 8 equal to 0. Discriminant less than 0. y1 not possible. y1 not possible means x1 not possible. Means there is no x1. अरे बाबा अंदर बाहर का चक्कर छोड़ो ना. There is no x1 y1 on the parabola. I repeat, there is no x1 y1 on the parabola where if I draw the tangent, it can pass through 2, 1. That means you cannot find the equation of tangent here in this case. Now ये जो अंदर बाहर का चक्कर है ये conic section तक ही रख सकते हैं. Look at this curve. Right? I'm pretty sure you'll say this point is outside the curve. Right? But what do you say about this point? This point is inside the curve or outside the curve? Inside. Inside with respect to one part and outside with respect to another. Yes. So what will happen here? You cannot say that tangents are not possible. Tangents are possible. These are 2 tangents you can draw from space. Okay. So inside, outside is totally related with conic section only, not at all with the all other curves we will study. The process will be same. If the point is given, let x1 y1 be the point. पहला point आ गया ये वाला, दूसरा point आ गया बच्चों कौन सा? Line joining 2 points is equal to slope of the tangent. Solve them. Solving these 2 equations is totally algebra actually. Right. सर तो इस कर्व का इक्वेशन क्या रहेगा, मतलब कितने डिग्री करेगा? R square equal to a cos 2 theta. It's polar equation, and it's the geometry of the curve is Lemon-Sket. You will not study it in any chapter of ours actually. It's out of syllabus. Okay. But there are many other curves where we can talk regarding this, right? Okay. So I'll remove this because you guys are unnecessary. आप लोग को unnecessary tension लेने की जरूरत नहीं है. Process ये रहेगा सारे questions का बच्चों. Type 2 का question number 1. Just take a picture. Who's going to take the screenshot? बच्चों थोड़ा fast draw इस सब चीज में. तुम लोग को बोर्ड एग्जाम भी देना है. थोड़ा 1 o'clock तुम्हें फ्री कर दूंगा, टेंशन नहीं है. Screenshot. Sir, I have taken. All right. सर हाँ बोलो बेटा. सर वो आप एक बार बता सकते हो 2/y1 आपको कैसे रहता है, बता सकते 2/y1 is the slope. ये देखना, slope of the tangent at x and y1. 2y dy by dx is equal to 4. Slope आ गया 2/y1. यहाँ से देखना यही तो रखा है. हाँ सर वो dy by dx का. थैंक यू. अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ओरिजिन से sin x पे तुम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? आई रिपीट, y इक्वल टू sin x जो कर्व है, ओरिजिन से कितना टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट नो? यस सर. अच्छा ओरिजिन से एक टेंजेंट तो यहाँ खुद ही आ जाएगी, राइट? एक टेंजेंट ये आएगी, से यस और नो? दिस यस सर. इनफाइनाइट टेंजेंट्स इधर भी आएगी, फिर इधर भी ऊपर जाएगी, इधर नेक्स्ट वाले लूप पे बन जाएगी. इनफाइनाइट टेंजेंट्स आएगी, राइट? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों को? टेंजेंट्स आर ड्रॉन to y is equal to sin x from origin.
प्रूव दैट, अच्छा ये पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हो ना तुम लोग, टेंजेंट ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हो तो ये पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही बोलते हैं ना। तो यहाँ तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनफाइनाइट हो गया ना बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ना। तो बोला प्रूव दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट lie on x square y square is equal to x square minus y square। मतलब बच्चों ये कर्व की शक्ल क्या है मुझे पता नहीं है, तो लोगों को भी जरूरत नहीं है पता करने की, लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जितने भी आएंगे ना बच्चों, ये जितने भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे वो इस कर्व पे लाई करेंगे। मतलब बच्चों आप लोगों को क्या करना है पता है, x1 y1 में इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, x1 y1 में एक रिलेशन लेके आना है, और वो रिलेशन क्या लेके आना है पता है ना, x1 square y1 square equal to x1 square minus y1 square। That will immediately imply कि x1 y1 इस कर्व पे लाई करना है। बताओ सही है कि नहीं है? Yes sir। तो अपन लोग सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अज्यूम कर ले बच्चों यहाँ पे, x1 y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया यहाँ पे, ओके। अब वापस वही टू इक्वेशंस बनाएंगे। पहली इक्वेशन क्या आएगी बताओ, कर्व का नाम क्या है, y इक्वल टू sin x है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, y1 is equal to sin x। y1 sin equal to x1 sin x1, x1 y1 lies on the curve। बच्चों इज इट ओके? yes अच्छा अब दिमाग में सेट करो एक चीज, अपन लोग को दो इक्वेशंस बनानी है और दोनों इक्वेशंस में x1 y1 के लिए उसको सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सॉल्व तो कर सकते हैं वैसे हम लोग, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल मींस हमारे बीच में है कि नहीं है बच्चों, वो देखना पड़ेगा। माइक ऑफ रखो ना यार प्लीज। हाँ अब जो सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी बताओ, लाइन जॉइनिंग y1 upon x1 is equal to cos x1। excellent। slope of the line joining OP, O and P, that is y1 by x1, y1 minus 0 upon x1 minus 0 equal to cos x1। इसका cos डेरिवेटिव x और x1 पॉइंट। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, again what is our purpose, our purpose is to get the relation between x1 and y1। तो आप बोलोगे सर ये भी एक रिलेशन है, ठीक है तो ये रिलेशन है तो x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, मना कौन कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। ये भी एक रिलेशन है, x1 y1 इस पे भी लाई कर रहा है, राइट। बच्चों इसको ले लोगे तो x1 y1 में एक रिलेशन आ गया, y1 इक्वल टू x1 cos x1। तो x1 y1 इक्वल टू x1 cos x1 पे लाई कर रहा है, मतलब y इक्वल टू x cos x पे भी लाई कर रहा है, दैट इज आल्सो करेक्ट। लेकिन बच्चों अपने को जो रिलेशन प्रूव करना है उसमें तो cos x1 और sin x1 नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को चमक चुका है कि x1 y1 में रिलेशन लेके आने में अगर मुझे इन दोनों को एलिमिनेट करना है तो क्या करना है बच्चों, sin square plus cos square y1 square plus y1 square by x1 square equal to 1। बच्चों प्रूव हो गया क्या, दिस इंप्लाइज x1 square y1 square plus y1 square equal to x1 square, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया and I get this। What is this implying, x1 y1 is on the curve, what curve बच्चों, x square y square plus y square equal to x square। This is you wanted to prove actually। So हाँ so how do you get the second equation sir? तुम राइट फ्रॉम बिगिनिंग जो है ना बेटा वो पढ़ो, नोट पढ़ो, फर्स्ट बोर्ड वाला नोट पढ़ो। मैंने क्या लिखा, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। Yes sir। टेंजेंट का स्लोप वो cos x1, स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स। हर एक जगह में यही यूटिलाइज हम लोग कर रहे हैं बच्चों। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इज देयर एनीवन हैविंग डाउट? प्लीज टेक वन मोर पिक्चर फास्ट, विल गो फॉर द नेक्स्ट। ये आप लोग को करना है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। एक बात का ध्यान रखो, मैनिपुलेशन सिमिलर नहीं हो सकता ना। अब आपको ये दो इक्वेशन तो हमेशा मिलेंगे, आपको पता लग गया। दोनों इक्वेशंस को लाने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन में सेम टाइप नहीं मिलेगा, कुछ चेंजेस तो करता रहेगा ना वो क्वेश्चन में, एग्जामिनेशंस में, राइट। दो इक्वेशंस लानी है कैसे भी करके x1 y1 में, और फिर इन दोनों इक्वेशन के साथ कुश्ती लड़नी है अपने जो भी प्रोबेबल रिजल्ट पूछा हुआ है उसने हर क्वेश्चन में वो लाने के लिए, राइट। यहाँ प्रोबेबल रिजल्ट y1 इक्वल टू sin x1 फालतू क्वेश्चन है,
y1 इक्वल टू x1 cos x1 फालतू क्वेश्चन है, क्योंकि वो दोनों तो फटाफट से आ ही जाएंगे ना, राइट। लेकिन ये रिजल्ट लाना मतलब इनको स्क्वायर करके ऐड करना, वो एक एक्स्ट्रा इशू आ गया बच्चों। हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया क्या? अरे यार यस बोलो तो मैं आगे चलूं। यस सर। ऑलराइट बच्चों, ये क्वेश्चन तुम थोड़ा करके दो, टाइम कम लगाना ना, क्योंकि एक आइडिया तुम लोग को 2 क्वेश्चन से आ जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, फोर्थ एकदम घिसने वाला क्वेश्चन है बच्चों। जो बच्चा बहुत तेजी से स्टेप्स मैनिपुलेट करेगा उसको बहुत जल्दी बनेगा, बाकी लोगों को टाइम लग सकता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 इन टाइप 2। और जो क्वेश्चन पूछा उसने, prove that all the points on the curve, all the points on the curve, ये लैंग्वेज ही चेंज करना भाई, क्वेश्चन तो सेम सा ही पूछ रहा है। prove that all the points on the curve y square is equal to, लेकिन मैनिपुलेशन अच्छा वाला है इसमें बच्चों, 4a टाइम्स और फिर उसने दिया है x plus a sin x by a sin x by a. Prove that all the points on the curve where tangent is parallel to, अच्छा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होता है? स्लोप इक्वल टू कितना हुआ? 0 dy by dx at x1 y1 at x1 y1। सारे पॉइंट पे dy by dx 0 थोड़ी होगा, स्पेशल पॉइंट्स, वो स्पेशल पॉइंट where the tangent parallel to x axis lie on a parabola। मतलब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन की शक्ल ही बदली है उसने, क्वेश्चन तो सेम ही पूछा है। Try to make 2 equations, right? Manipulate it for getting the relation in x and y1 which will be a parabola। बच्चों पिछले दोनों क्वेश्चन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो। टाइम बना दो। जिसका हो जाएगा प्लीज रेज योर हैंड। Six students have done it. Good.
जो सेम ट्रैक पे जाएगा, टू इक्वेशंस यू हैव टू गेट। ओके ओके ओके, टेक योर टाइम। जिस तरह का कर्व, मतलब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह का है मतलब कुछ इस तरह का कर्व मान लो, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कुछ इस तरह का कर्व है, तो ये टेंजेंट, ये this, ये जितने भी पॉइंट है ना बच्चों, x1 y1 टाइप के पॉइंट्स where tangent is parallel to x axis, है ना, ये सारे पॉइंट्स इस तरह के सारे पॉइंट्स they lie on a parabola. This is what he is saying. No doubt ये parabola दिख नहीं रहा, बनेगा नहीं parabola, but एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हाँ इस तरह के पॉइंट्स की बात कर रहा है शायद। 16 students have done it. That's nice. अच्छा सीख लो एक बार, जिनको 21 को हो गया ना इतनी देर में, अब सीख लो एक बार। Let x1 y1 be the point where this happens, whatever is given. That means x1 y1 will lie on the curve. y1 square is equal to 4a times this solution I am writing here. y1 square equal to 4a times x1 plus a sin x1 by a. The first condition. अच्छा second condition slope of the tangent x1 at x1 y1, इसका slope कितना आएगा बच्चों, 2y dy by dx equal to 4a times 1 plus a cos x by a into 1 by a, है ना, this and this cancel. अच्छा you want slope at x1 y1, so write it x1 y1 here, x1 y1 here, x1 here, बराबर, any doubt? अच्छा isn't it given that dy by dx at x1 y1 is equal to 0? Yes, sir. Yes. Yes, sir. That means this is equal to 0, this is over, so what is left बच्चों, cos of x1 by a is equal to -1 आ गया ना। Yes. बच्चों now what is your purpose, once again we have to go to that purpose, we have to find out a relation in x1 y1, तो ये भी relation है x1 y1 पे, right, but he says all the points lying on the parabola, ऐसा नहीं कि पैराबोला पे लाई करते हैं किसी और कर्व पे लाई करते, cos x1 by a मतलब cos x by a equal to -1, तो x पॉइंट उस पे लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट का जो लोकस आएगा उस पे लाई करेगा, we are not interested in this, y1 by x1 इस पे तो लाई कर ही रहा है, इस पे तो लाई कर ही रहा है, राइट, हमें x1 y1 में रिलेशन चाहिए एक पैराबोला, दैट मींस इन दोनों इक्वेशंस के साथ लड़ना है और एक पैराबोला लेके आना है, x1 y1 में रिलेशन लेके आना है। जो cos x1 by a का वैल्यू पता है, ये sin x1 by a अगर गायब नहीं हो तो पैराबोला तो कभी मिलेगा ही नहीं ना हम लोग को। हाँ सर, बराबर, बट वो 0 हो जा रहा है, बट 0 हो जाएगा जी, उसको 0 बनना ही पड़ेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 बनना है, तो cos x1 by a -1 है, तो दिस इंप्लाइज sin x1 by a कितना बनेगा बच्चों, 0 नहीं बन सकता है। एंड व्हाट इज दिस इंप्लाइंग, व्हाट इज दिस इंप्लाइंग फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम आंसर equation 1 answer, right, this is equation 1, you can say this is equation 2, y1 square is equal to 4a times x1 plus 0, x1 y1 is on the curve हो गया बच्चों क्या, y square equal to हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन, सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, बेसिकली अगर तुम तीनों क्वेश्चन में एक कॉमन चीज नोटिस करो तो वो क्या है पता है, अपन हर बार x1 y1 पॉइंट अज्यूम करते हैं, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है, फिर स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स लेकर के और सेकंड इक्वेशन बनाते हैं और इन दोनों इक्वेशन से लड़ते हैं, राइट। अच्छा एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन सारे इसी तरह के होते हैं, बट इनमें मैनिपुलेशन स्केल जो ना, आई रिपीट मैनिपुलेशन स्केल मतलब आपका मैनिपुलेशन वाला जो पार्ट है ना वो बढ़ता चला जाता है,
क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है, लेकिन कभी अच्छे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा भी हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा क्वेश्चन पे, ये आप ही लोग को करना है अभी। ये पैराबोला बनाया बच्चों, इस पैराबोला को नाम दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी वो तो दे ही नहीं सकते, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। बच्चों कुछ विजिबिलिटी इशू है क्या? नो सर। No, sir. एक्स स्क्वायर No, इज sir. इक्वल टू वाई। हाँ ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये पैराबोला। अच्छा दूसरा कर्व उसने बनाया ये वाला, ऐसा कर्व दे दिया होगा, इधर भी बनेगा वैसे ये वाला कर्व, जरूरत नहीं इधर की, राइट? ये वाला कर दिया, इस कर्व का नाम दे दिया y इक्वल टू माइनस 8/x। आई रिपीट, माइनस 8/x, इधर लिख देते हैं y इक्वल टू माइनस 8/x। अच्छा p कोमा q इस पॉइंट पे, इस कर्व पे लिया p कोमा q पॉइंट, राइट? और इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया। अच्छा p कोमा q पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया ना, वो इस वाले कर्व को r कोमा s पे मिल रहा है, ये पॉइंट r कोमा s, एंड इट इज गिवन बोथ p एंड r ग्रेटर देन 0। बच्चों इसको देने का मतलब समझ में आ गया होगा ना, p एंड r दोनों ग्रेटर देन 0 का मतलब कर्व तो इधर भी है ना, p ग्रेटर देन 0 का मतलब टेंजेंट इधर वाले पोर्शन पे डाली हुई है, राइट? r ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वाली ब्रांच पे जाके मिल गई, p एंड r ग्रेटर देन 0। तो वो जो क्वेश्चन पूछा उसने, फाइंड p प्लस r। तो ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई के पॉइंट p कोमा q पे टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ किया है, द टेंजेंट मीट्स द कर्व अगेन एट r कोमा s, राइट? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड r। बच्चों सोचो उसमें कितने रिलेशंस हैं। if you want to find, you can find 5 different relations here. p comma q lies on the curve, number 1. r comma s lies on this curve, number 2. number 3 बच्चों कौन सा? line joining these two, slope वाला is equal to slope at this point, third relation is equal to line joining these two का slope is equal to इसका dy by dx at r comma s, right? 4 रिलेशन तो आ गए ना बच्चों। पांचवा रिलेशन तो पता ही है तुम लोग को, इसका dy by dx at r comma s, इसका dy by dx at p comma q will be same, yes sir। तो तुम ये 5 रिलेशंस बनाओगे और इसमें कुश्ती लड़ोगे ना, तो p प्लस r का वैल्यू आ जाएगा बच्चों। ठीक है, करो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल टेल यू। मतलब ये जो प्रोफाइल है टाइप 3 का, उसमें सबसे बढ़िया प्रॉब्लम नंबर 5 है, जो तुम्हारा बहुत बार किया हुआ है लेकिन तुम्हें याद नहीं आएगा, देखना तुम्हें, मैं एक बार प्रूव करूंगा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में। बट प्रॉब्लम नंबर 4 इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे ट्राई करो जरा इसको एक बार, मैं तो सिखाऊंगा। अगर इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए मुझे जगह चाहिए इसमें। सर वो जो टेंजेंट है वो y इक्वल टू माइनस 8/x को भी टेंजेंट है। yes it is given that tangent at p comma q, ये मैंने बेटा एक्सप्लेन किया, उसमें बता दिया ना, tangent at p comma q is also tangent at r comma Okay, s. I'll lower the hands, those who are able to solve this question now, they will raise hand.
स्क्रीनशॉट हो गया क्या? Yes. अरे वाह, हाँ yes, got the answer. No, Harsh, it's not correct. Rujita, your answer is correct, Vijay. The private chat enable करो ना. हाँ यार. Those who got the answer, please raise your hand. Hand raise का option थोड़ी चला गया अभी तो. Because many students are giving the answer. It doesn't make any difference if I announce the answer. P plus R is 5. Those who are getting it, please raise your hand. It's nothing like concept actually. It's something like manipulation. That's it. So 2 minutes. नहीं टाइम ले लो. एक ही तो क्वेश्चन इस टाइप में अभी और है. उसके बाद तो टू कर्व्स टच ईच अदर इस पार्ट में एक टाइप 2 में ही एक चीज और बची हुई है वो करनी है. और फिर एंगल बिटवीन द कर्व्स वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. एंगल बिटवीन द कर्व्स. Eleven students have done it. थोड़ा टाइम लग रहा है बट हो रहा है. Good.
घंटे इससे हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स। सर -8/r²। नहीं बेटा 8/x का डेरिवेटिव क्या हुआ बता? -8/x का है ना? हाँ समझ। सर आपने फिफ्थ रिलेशन लिखा है? जरूरत ही नहीं पड़ रही यार उसकी, चाहो तो तुम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ नहीं रही है। नंबर बढ़ नहीं रहा है अभी, सॉल्व करूं मैं? नहीं सर नहीं। मैनिपुलेशन ही तो है अभी। अभी देखो ना, Q और S का वैल्यू यहाँ से उठा के याद दो, P और R चाहिए ना तुम लोग को, तो P और R को तो रहने दो ना, Q और S यहाँ से उठा के रख दो ना यहाँ से, तो Q का वैल्यू P² माइनस S का वैल्यू +8/r, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों यूजिंग these three relations. I get this step is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2p² और -2pr, ठीक है। ये p और r में रिलेशन आ गया बच्चों, लेकिन प्रोडक्ट pr तो मुझे चाहिए नहीं। प्रोडक्ट pr की वैल्यू बच्चों यहां से डाल सकते हैं ना, प्रोडक्ट pr की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? 2pr ही आ रहा है ना डायरेक्ट, 2pr कितना आ रहा है बच्चों? 8/r आ रहा है ना, 8/r। ठीक है। सब 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 को उधर लेके जाओ, नहीं अभी एक बार ऐसे लिखते हैं, p² प्लस 8/r इज इक्वल टू 2p²। 2p² क्यों लिखते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं ना, 8/r प्लस p² और 2pr का वैल्यू हो गया -8/r, राइट? दैट विल गिव यू p² इज इक्वल टू कितना बच्चों? 16/r। दिस इज रिलेशन नंबर 5। अभी आगे फिर फंस गए, p² और r का रिलेशन आ गया यहाँ, तो बच्चों p और r का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, तुम्हें पता है p² का वैल्यू फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन, व्हाट इज p² बच्चों? 16/r4 होगा ना, इसको स्क्वायर कर दो ना एक बार, p² यहाँ से भी तो हो जाएगा, राइट? यस सर। बताओ क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट इज दिस इंप्लाइंग फ्रॉम दीस टू? r³ = 1। हाँ, r³ इज इक्वल टू 1। अरे बाबा एक रिलेशन और लिख दो, 16/r इज इक्वल टू 16/r4। अब r0 तो हो नहीं सकता बच्चों, r0 तो हो नहीं सकता ना, तो कैंसिल तो हो ही जाएगा ना, एक r तो गायब हो जाएगा। r³ इक्वल टू 1 विल गिव यू r इक्वल टू 1। बच्चों r इक्वल टू 1 आ गया तो p आ गया ना, यस p सर। कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया p, वेरी गुड, ठीक है। p 4 आ गया, r 1 आ गया, तो बच्चों p + r का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया बताओ? इजी था, मतलब समझो एक चीज, इसमें इट्स नथिंग लाइक कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एग्जाम्स में बच्चों बैंड बज जाती है। तुम्हें पता नहीं एग्जाम्स में, मतलब जब रहता 2-3 मिनट ही रहते हैं ना और इस तरह का क्वेश्चन आता है, और यार इतने सारे रिलेशन में कैसे ढूंढेंगे, तो मैनिपुलेशन स्किल बच्चों टाइम टू टाइम इंक्रीज हो जाएगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट होना चाहिए। थोड़ा टाइम कंज्यूम करो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, y² = 4ax पैराबोला पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या लेते थे तुम? am² 2am, जो भी, मतलब m के टर्म्स में क्या इक्वेशन होता था बच्चों? y = mx - 2am - m, ऐसा कुछ इक्वेशन है था क्या? हाँ याद करो उसको, h को मैं कैसे मतलब किसी पॉइंट से किसी पैराबोला पे मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? 3 ना सर। 3। और मिनिमम कितना हो गया बच्चों? मिनिमम कितना हो गया? एक तो ड्रॉ होएगा ही ना। हाँ और उसके लिए कंडीशंस भी की है ना तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। 4ak² वो सर। यस 27ak।
कुछ मतलब अच्छा सा कर्व भी बनता है उसका, एक बनाया होगा कि नहीं उसको, उससे अपने सर, अपने को मतलब स्पीड है। कुछ बनता एक चीज Cascade. बताओ। स्पीड, हाँ 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 हाँ। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, उस नॉर्मल का इक्वेशन में, क्यूबिक इक्वेशन में, उस क्यूबिक इक्वेशन में h k का लोकस निकालने के लिए अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ एम्स दे दिया जाए, m1 m2 इक्वल टू -1 दे दो, मतलब परपेंडिकुलर नॉर्मल्स की कंडीशन है, दो नॉर्मल्स परपेंडिकुलर है, तो m3 आ जाता था, और वो m3 का वैल्यू तुम वापस उसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे, तो तुम्हें h और k में एक लोकस मिलता था ना बच्चों? याद है इस तरह के कुछ क्वेश्चंस किए है ना? सर, रिपीट कर Yes, सकते हो? Yes, अरे sir. बाबा m में जो क्यूबिक इक्वेशन, m में क्यूबिक इक्वेशन आया बराबर, हाँ सर, तो तीन रिलेशन मिलेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3, हाँ प्रोडक्ट m1 m2 और m1 हाँ। m2 m3, बराबर ना? हाँ हाँ सर, ऐसे तीन रिलेशन मिलेंगे। इन तीनों रिलेशंस को घुमा फिरा करके अपन लोग h k का एक लोकस फाइंड करते नहीं करते थे हाँ पैराबोला में? बहुत सारे yes. क्वेश्चन है, मतलब बुकलेट में भरे पड़े हैं क्वेश्चन इस तरह, बराबर ना? यस सोचो, सब ध्यान दो। क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, देखो वो जो क्वेश्चन तुम करते थे ना, उसके ब्याह पे क्वेश्चन बनाया यहाँ पे। क्या क्वेश्चन क्या बनाया? अरे बाबा पैराबोला तुम लोग क्या बनाते थे बच्चों? x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x हो गया ना? तो पैराबोला की जगह कुछ और बना लेते हैं, जैसे ये कर्व लिखा मैंने, x इक्वल टू t स्क्वायर और y इक्वल टू t क्यूब। बच्चों मान लो ये कर्व कुछ इस तरह का कर्व, इस तरह का कुछ कर्व, राइट? इस तरह का कुछ कर्व। ये y इक्वल टू x नहीं आया था? अरे x इक्वल टू t स्क्वायर, y इक्वल टू t क्यूब कर्व, बच्चा ये Eliminate पैराबोला नहीं बनाया, पैराबोला नहीं बनाया, कोई कर्व बनाया। ये y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब हो गया ना कर्व? हाँ, y इक्वल टू x हो गया ना? x सॉरी, x इक्वल टू t स्क्वायर, y इक्वल टू t क्यूब है बेटा, ओके ओके सर सर। ठीक है? अच्छा, उसने क्या बोला पता है? उसने बोला कि ओरिजिन से इस कर्व पे, ओरिजिन से ये कर्व पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किया, ये पॉइंट P ले लो बच्चों, ये Q ले लो। अच्छा बताओ बच्चों, ऐसी कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, परपेंडिकुलर लाइंस? इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे ना, P और Q वेरी करेंगे ना बच्चों, यस सर, रोटेट करोगे तो, बराबर ना? हाँ मतलब P और Q वेरी करने वाले हैं, गारंटी हो गया। इसका मतलब ये गारंटी हो गया कि कोई लोकस का क्वेश्चन आने वाला है। बच्चों उसने पता है क्या पूछा? उसने बोला कि two mutually perpendicular lines or two perpendicular lines are drawn from origin to this curve, okay? इन दोनों पॉइंट्स पे बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करिए, इस पे और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, दिस इज टेंजेंट हियर। ये टेंजेंट जिधर मिल रही है ना बच्चों, उसका लोकस ऑफ पॉइंट P, locus of P is ay square equal to, so give me just 10 seconds, I'll give you the exact relation. Ay square equal to bx minus 1. Find mod A plus mod B. बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? और यू वांट मी टू रिपीट? सर आपने आई थिंक ये दो बार लिख दिए, क्या बेटा? मतलब मैंने वो कर्व पे एक पॉइंट पी और फिर एक लोकस भी ढूंढना है। हाँ सर, 2 बार पिया। अच्छा सॉरी, उसको आर से इसको जो कुछ कर्व और पे हाँ नहीं, ठीक है, कोई नहीं। आर का लोकस लिख देते हैं यहाँ पे, लोकस ऑफ आर, थैंक यू यार। locus of r is ay square equal to bx minus 1. Find mod a plus mod b. बच्चों ट्राई दिमाग लगाओ थोड़ा, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है ना बच्चों, एग्जैक्ट वहीं से क्वेश्चन पैदा हुआ है। तो कैसे हैंडल करना है, dy by dx कैसे यूटिलाइज करना है, क्या करना है वो देखना बस। एक बार ये पूरे की पिक्चर ले लो।
कहाँ गई सब पिक्चर? बच्चों इस क्वेश्चन को अपन लोग होमवर्क में छोड़ के एक कंटेंट मेरे को करना है, वो कर लें क्या? हाँ सर। क्योंकि ये तुम थोड़ा बहुत भी पैराबोला अगर रिपीटेशन थोड़ा सा वो वाला नॉर्मल्स वाला पार्ट रिपीट करोगे तो मजा आएगा। मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ बच्चों, रिकॉर्डिंग में इस हिंट को सुन लेना एक बार। पी पॉइंट पे टेंजेंट निकालोगे बच्चों, तो ये यहाँ पे इस पे टेंजेंट निकालना तो आता है ना बच्चों, हम लोगों ने किया था ना टाइप 1 में इस तरह का क्वेश्चन। यस सर। हाँ सर। यहाँ पे तुम टेंजेंट निकालोगे, इस ये टेंजेंट को एच कोमा कैसे पास करोगे बच्चों तुम लोग को टी में क्यूबिक इक्वेशन आएगा, से यस और नो? यस सर। यस सर। अब बच्चों टी में जो क्यूबिक इक्वेशन आएगा उसके रूट्स हो जाएंगे t1 t2 t3, बराबर? हाँ। तो मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, ओरिजिन और पी पॉइंट, पी पॉइंट तो t1 हो गया, मतलब t1 स्क्वायर t1 क्यूब हो गया। यस। ये पॉइंट हो गया t2 स्क्वायर t2 क्यूब हो गया। t2 क्यूब। हाँ। अब बच्चों t3 के बारे में पता नहीं है कुछ भी, t3 के बारे में कर्व पे है कि नहीं है कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जो इक्वेशन आई है उसके रूट्स पे t3 भी है ना, है। मानते हो? तो बच्चों t1 t2 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स इनटू स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स इज इक्वल टू -1 होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा सर। वो t1 t2 में एक रिलेशन दे देगा, उसको यूटिलाइज करना बच्चों, जो h k में रिलेशन आया ना क्यूबिक वाला। हाँ क्यूबिक वाला, उसमें करना यूज। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको t3 का क्या करना है? कुछ नहीं। t3 का वैल्यू आ गया तो t3 को वापस उसी इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देना ना। t3 हाँ। किसकी टर्म्स में आएगा बच्चा? h और k की टर्म्स में तो आएगा। हाँ h और k के। इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देना तो h के में रिलेशन आ जाएगा, वो यही लोकस पे आएगा। ओके राइट, ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम में इसको वापस Compare डिस्कस कर देंगे। वो सिर्फ मेरे को एक्चुअली पुराना वाला क्वेश्चन रिपीटेशन में थोड़ा लेना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। बच्चों एक बात बताओ, ये जो कर्व है, बस ये लास्ट कंटेंट मेरा जा रहा है, और बच्चों इसको थोड़ा सीरियसली लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आईआईटी वाले ने पूछा हुआ है एक्चुअली। राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो टेंजेंट नॉर्मल से बहुत कम पूछे हुए बच्चों। सब्जेक्टिव में बड़े अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नहीं यार, अच्छे नहीं, लेंथी और गंदे क्वेश्चन, बहुत लंबे क्वेश्चन उसने सब्जेक्टिव में पूछे हुए थे। उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा उसने। वो क्या बोल रहा है कि ये कर्व हो गया y = fx, ये कर्व हो गया y = gx, they touch each other at x1 y1, two curves touch each other। बच्चों आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेंजेंट्स वगैरह वगैरह कुछ, आई एम टॉकिंग अबाउट टू कर्व्स टच ईच अदर। तो यहाँ पे पहला रिलेशन तो आएगा बच्चों y1 = fx1, x1 y1 कर्व पे लाई कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर देगा। दूसरा रिलेशन आएगा बच्चों y1 = gx1, यानी सेकंड कर्व भी सेटिस्फाई करेगा इससे। बच्चों एक और रिलेशन आएगा, बता सकते हो क्या आएगा? स्लोप से dy/dx इक्वल, इसका dy/dx x1 y1 पे और इसका dy/dx x1 y1 पे सेम आएगा ना? हाँ सेम। यस सर। यस तो सर। बच्चों इसको मैं f-x1 = g'(x1) लिख सकता हूँ क्या? यस। यस सर। ये तीन रिलेशन आएंगे। बच्चों एक चीज बताओ, when two curves touch each other and we do not know the point, you need only two equations not to solve x1 y1 का वैल्यू, यस सर। but here we are getting three equations। इसका मतलब बच्चों एक चीज समझो, दो इक्वेशंस को जब तुम सॉल्व करोगे
तो कुछ x1 y1 आएगा, वो x1 y1 अगर थर्ड को सेटिस्फाई ना करे तो बच्चों कर्व टच कर रहे हैं क्या एक दूसरे को? नहीं सर, स्लोप से इक्वल नहीं होगे, मतलब स्लोप से इक्वल नहीं होंगे ना। नहीं तो touch समझ गए ना, तीन इक्वेशन Yes. आने का मीनिंग क्या है? एक मीनिंग तो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ दीज टू, एनी टू, आई एम सॉरी, नॉट सेटिस्फाइंग द थर्ड वन, कर्व नॉट टचिंग ईच अदर। और बच्चों दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन, फर्स्ट वाला टाइप तो छोड़ दो, फालतू है, उसके क्वेश्चन तुम्हें लेवल 1 2 3 जो दिया हुआ उसमें एक आधा क्वेश्चन मिलेगा, वो तुम कर लेना। सेकंड टाइप बड़ा अच्छा है बच्चों, वहां से क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, और वो तुमसे गलत होने के चांसेस मैक्सिमम। अच्छा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो सब लोग। y is equal to e to the power x and y is equal to kx square touch each other. Find k. अब बच्चों तुम्हें समझ में आ गया, आओ आगे होगा तीसरी इक्वेशन की जरूरत कहां पड़ेगी? बच्चों समझ में आया नहीं यार, तीसरी इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। अरे बाबा के निकालने में पड़ जाएगी ना, दो इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी और तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करो देना। पहला इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, y1 इक्वल टू e रेज़ टू पावर x1 बराबर। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, y1 इक्वल टू y1 is kx1 square. kx1 स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, e टू द पावर x1 इज इक्वल टू 2kx kx1 square. 2kx नहीं 2kx1 हाँ बराबर है बच्चों। ये तीन रिलेशन आ गए, और बच्चों इन तीन रिलेशन से तुम्हें k का वैल्यू निकालना है। जरा फटाफट से निकाल के दो, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन। किसी को भी आंसर आएगा तो अनाउंस कर देना, कोई इशू नहीं। सर हाँ बोलो बेटा। सर e raised to x1 is kx1 square, ऐसा भी एक रिलेशन आ जाएगा ना? e raised to power x1 is equal to, ठीक है ना यार, वो तो मैनिपुलेशन से तो बहुत सारे रिलेशन नए नए आएंगे, तीन को उटपटांग की ये मेन वाले रिलेशन yes e square by 4, those who are getting e square by 4 please raise your hand. Very easy question बच्चों, go little faster please। तुम लोग सिर्फ साथ साथ पढ़ते रहो, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको सीखो, और उसको समझ करके जितना होमवर्क दिया जा रहा है एक बार ट्राई करके आ जाओ, दैट्स इट। फिर कोई टेंशन नहीं है मैथ्स में। 16 स्टूडेंट्स ऑफ दैट। सर हैंड का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। क्या वापस बोल? रिएक्शंस में। अच्छा ओके। अच्छा तो रो क्यों रहा है यार, किसने रेस किया ये? 25। अच्छा मैं आंसर लिखूं कि सॉल्व करके दूं, बताओ इसको। करूं क्या सॉल्व? हम सॉल्व करके देखते हैं। हो गया सर। नहीं तुम लोग क्या करोगे, y इक्वल टू e टू द पावर x1, y1 इक्वल टू kx1, और ये आ रहा है रिलेशन। अब क्या करोगे, मतलब e रेज़ टू पावर x1 को y1 डाल दो यहाँ पे, y1 इक्वल टू 2kx1 आ गया, और y1 का वैल्यू यहाँ डाल दो उठा के वापस, मतलब इसका वैल्यू अब यहाँ डाल दो उठा के, तो क्या आ जाएगा 2kx1 इज इक्वल टू kx1 स्क्वायर बराबर ना बच्चों। x1 is equal to 0 and x1 is equal to r 2। x1 जीरो नहीं हो सकता, सोच क्यों? सर मतलब मैं बोला टू सिचुएशन पर उसे और राइट राइट, x1 जीरो नहीं हो सकता, कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। और k भी जीरो नहीं हो सकता, k जीरो हो गया तो ये लाइन क्या बन जाएगी बच्चों, ये k जीरो हो गया तो ये y इक्वल टू 0, तो ये तो कभी टच ही नहीं करेगी। सोचो यस सर। k जीरो तो y इक्वल टू 0 x एक्सिस हो गया, और e टू द पावर x का भी टच नहीं करेंगे, इसका मतलब k जीरो भी नहीं हो सकता, इसको भी हटाओ, ये भी कैंसिल कर दो। तो बच्चों x1 का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया ना, x1 आ गया तो बच्चों y1 आ जाएगा क्या, y1 यहाँ से इम्प्लाइज सर जरूरत नहीं है ना। अरे ठीक है ना, तो ऐसे ही निकाल लो, ठीक है। x1 आ गया तो y1 भी आ गया ना बच्चों, ये y1 कितना आ गया e स्क्वायर, तो k कितना आ जाएगा बच्चों e स्क्वायर बाई।
सर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके फिर थर्ड में यूटिलाइज करके भी आ ही जाएगा। अरे देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यार, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और जो तुम्हारा एग्जाम है इसमें कोई डाउट नहीं है, आई रियली अप्रिशिएट यूनिट टेस्ट में आज मैथ्स का टेस्ट है, लेकिन उसमें मैथ्स में जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो टॉपिक्स तुम्हारे जेई इधर में हो गए उसके लिए तो एक्स्ट्रा तुमको नहीं पढ़ना है ना। तो एक काम करो ना, एक केयरलेस मिस्टेक के लिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम के लिए क्यों छोड़ते हैं, टाइम है अपने पास में, मैंने बोला था 1 o'clock छोड़ देंगे, लेकिन तुम लोग अच्छा कर रहे हो तो एक क्वेश्चन में गलती करवा लें क्या बच्चों, ये इसी पे बेस दे दो सर। सर दे दीजिए सर, ये दो सर 3 o'clock को एग्जाम। चलो यस सर, मुझे चलो गलती करनी है। एक क्वेश्चन कर लेना, चल इसको होमवर्क में देके छोड़, ठीक है? यस सर, होमवर्क कर लेना इसको एक बार। अच्छा आई विल से कि इसमें होमवर्क दे रहा हूँ इस वजह से आप लोगों को फाइनली गलती का मुझे चलेगा, लेकिन इसमें बहुत बच्चों को गलती है, बहुत बच्चों को मतलब कम बच्चों को करेक्ट आंसर आता है फर्स्ट टाइम। y is equal to 1 plus x square by a cube and y is equal to 4 root x। बच्चों फोर्थ रूट नहीं है, 4 root x, 4 root x। मतलब these two curves have 1 point common, find a। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट?